from Daiv Bharati, we have been organizing several pujas and homas at different parts of the country. And for our great fortune, on our advisory panel, we have Acharya Subodh Mishra ji. And by now, we have conducted several pujas, Mata ki pujas, Ma pujas. Baglamukhi we have done at Baglamukhi Mandir. And then we have done Vindhya Vasini, puja at Vindhya Vasini. And then we have done at Kamakhya, we have done a puja, Tantric Shatchandi puja during the Ambubachi period. And many more to go. So we want to connect all our Bharatiyas to this Sanatana Dharma. That is our primary intention. So in this intention, forthcoming there are several pujas for Rajarajeshwari that we will be conducting. So for this, we have a great scholar and a person who has surrendered himself to the goddess. तो जो समर्पित भाव से पूरा कार्यक्रम करता है वो है हमारा आचार्य जी सुबोध मिश्रा जी. I will just read out a brief profile of Acharya ji before we start this program. So he is on the advisory board of Daiv Bharati, our company. Shri Subodh Kumar Mishra is a renowned Pandit and Acharya, deeply respected for his profound knowledge in astrology, Tantra, Agama, and Indian spiritual traditions. Originally hailing from the sacred city of Gaya in Bihar, he serves as a distinguished professor at Dr. J.N. Mishra College, Mao. He is a professor in Sanskrit. He completed his post-graduation in astrology with a gold medal from the prestigious Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University, and also completed post-graduation in Sanskrit, Tantra, philosophy, and Maghi. He further pursued PhD in Tantra, contributing valuable research and insights to Indian scriptural heritage. With decades of experience, Mishra ji has delivered numerous lectures and discourses on Adhyatma, the Puranas, and traditional Indian sciences, helping guide countless seekers on the spiritual path. His engaging and enlightening talks can be found on his YouTube channel, where he continues to spread Vedic wisdom in a relatable manner, which is called as Shashwat Chintan. So, one thing which distinguishes Acharya ji, who is a Mahan Acharya, and world over he has his disciples everywhere, especially for this Sri Vidya and Sri Tantra. And we requested him that why can't we take up this particular lecture, so that many of them, whoever, we had huge numbers who joined our Tantric Shatchandi Puja. So, and many of them who were in the Sri Vidya Tantra were requesting that we want to meet Acharya, we want to talk to him, and we want to interact with him. And then there are many of them who are also asking his numbers directly, and they want to contact him for various reasons, that is especially horoscope reading and other things, and wanted guidance, and some of them were ready to go to his place also. So in this connection, we thought, let this knowledge spread for a larger group, and hence we organized this lecture on behalf of all of us here. So with the blessings of Mata Rajeshwari, because without her grace, nothing would have happened and we would not have started this. So with her grace, we are starting this lecture, and I humbly give the mic to Acharya ji to take it forward. One thing which I want to say is that Acharya ji will be speaking in Hindi, okay? And if at all there are other language people, so if we can discuss later, and little English also he can explain in the end if required. Okay, so we are going to start now, and I request all of you to mute until the program is completed. In the end, we will give an opportunity to speak and ask questions. If you have questions in other languages also, we will try to reach out to Acharya ji. Thank you and namaste.
So let us all have a blessed day today. Thank you. श्री विद्या के समस्त साधकों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन। दैव भारती परिवार अपने समस्त दर्शकों को, अपने समस्त सनातनियों को श्री विद्या से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास किया है। वैसे श्री तत्व अपने आप में बहुत गहन है। वैखरी वाणी से श्री विद्या के संबंध में कुछ कहना संभव ही नहीं है। उसके लिए तो परावाणी की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी राजराजेश्वरी ललितांबा की कृपा से, उनके ध्यान मात्र से जो कुछ भी एक तारतम्य आएगा आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा। तो किसी भी साधना सत्र को प्रारंभ करने के पहले वह सत्र निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो, इसके लिए हम भगवान गणेश का ध्यान करते हैं, गुरु परंपरा का ध्यान करते हैं और फिर अपने आराध्य का स्मरण करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर अपने आप को तैयार कर लें, क्योंकि वह परम तत्व के संबंध में कुछ कहने हम जा रहे हैं, आप सुनने जा रहे हैं, जिनके संबंध में स्वयं महासरस्वती भी कुछ कहने में असमर्थ हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी पराविद्या के संबंध में, राजराजेश्वरी के संबंध में कुछ कह नहीं पाते। वेद भी उन्हें नेति नेति कहकर आगे बढ़ जाता है। फिर हम ऐसे अकिंचन, हम जैसे तुक्ष प्राणी को क्या विषाद है कि राजराजेश्वरी ललितांबा के संबंध में कुछ कहा जाए। पुनश्च एक छोटा सा प्रयास है, आप सबों का आशीर्वाद और स्नेह मुझे अगर मिलता रहा तो जरूर उस श्री तत्व तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आंखें बंद करके और भगवान गणेश का ध्यान करें, गुरुमंडल का ध्यान करें, परांबा का ध्यान करें। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्ध्योगं वटुकत्रयं पदियुतं दूतीक्रमं मण्डलम् वीराङ्गष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनी मन्त्रराजसहितं वन्दे गुरुर्मण्डलम्, वन्दे गुरुर्मण्डलम्। मातङ्गीं भुवनेश्वरी च बगला धूमावती भैरवी, तारा छिन्न शिरोधरा भगवते श्यामा रमा सुंदरी। दातूनः प्रवदन्ति वाञ्छितफलं, यस्य प्रसादं विना तं वन्दे शिवरूपिणीं निजगुरुं सर्वार्थसिद्धिप्रदं, सर्वार्थसिद्धिप्रदम्। सत्कीर्तिं विमलं यशः सुकविता, पाण्डित्यमारोग्यता वादे वाक्पटुता, कुले चतुरता गम्भीर्यवीक्षावृता। प्रागल्भं प्रभुता गुणैः निपुणता, यस्य प्रसादं विना तं वन्दे शिवरूपिणीं निजगुरुं सर्वार्थसिद्धिप्रदम्, सर्वार्थसिद्धिप्रदम्। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्यजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये
शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते, नारायणि नमोस्तुते। श्री विद्या या विद्या शिवकेशवादि जननी, या वै जगन्मोहिनी, या विद्या प्रणव प्रपंच नलनी, या चित्कला साक्षिणी, सा विद्या परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी, सा विद्या परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। राजराजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी सृष्टि के परम सत्ता है, परम सत्य है। प्रश्न यह उठता है कि सृष्टि के जितने भी देवी देवता हैं, किसी को दुर्गा कहा गया, किसी को नवदुर्गा कहा गया, सभी देवियों को महाविद्या तक कहा गया, जबकि 10 महाविद्या में ललिता महात्रिपुर सुंदरी नाम की कोई महाविद्या नहीं है, जबकि तीसरी महाविद्या षोडशी का ही स्वरूप है। पुनश्च ललिता महात्रिपुर सुंदरी नाम की कोई महाविद्या नहीं है 10 महाविद्याओं में, और सबको महाविद्या कहा गया। लेकिन तृतीय महाविद्या राजराजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी को श्री विद्या क्यों कहा गया? प्रश्न यह उठता है। श्री का अर्थ क्या है? और जगदम्बिका को श्री विद्या नाम से संबोधित क्यों किया गया? महाविद्या तक तो ठीक है, हमारे यहाँ 10 महाविद्याएं हैं, काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, धूमावती, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, बगलामुखी, कमला आदि 10 महाविद्याएं मेरे यहाँ हैं, जिनकी उपासना तंत्र मार्ग में, तंत्र मार्ग से, वैदिक मार्ग से, हर मार्ग से संपन्न की जाती है। लेकिन राजराजेश्वरी त्रिपुरांबा को श्री विद्या क्यों? प्रश्न यह भी है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर हम यह कहते हैं कि परांबा ऐश्वर्य देती हैं, तो सृष्टि के सारी देवी देवता ऐश्वर्य देते हैं। संपूर्ण महाविद्या ऐश्वर्य देने में सक्षम है। धन धान विपुल सौख्य अनंत कीर्ति सारी महाविद्याएं देती हैं, लेकिन सभी महाविद्याओं को श्री विद्या नहीं कहा गया। सभी महाविद्याओं को श्री विद्या नहीं कहा गया। केवल राजराजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी षोडशी महाविद्या को, जो तृतीय स्थान पर महाविद्या है हमारे यहाँ, उन्हें श्री विद्या कहा गया है। बाकी सब महाविद्या है। आखिर ऐसा क्यों? यह बहुत विचारणीय विषय है। सृष्टि के जितने भी देवी देवता हैं, या तो आप भोग दे सकते हैं या मोक्ष दे सकते हैं, लेकिन श्री विद्या एक ऐसी देवता है, परमेश्वरी एक ऐसे देवता हैं जहां भोग और मोक्ष दोनों साधक के कर्तल हो जाते हैं। यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्षः, तत्रास्ति मोक्षः नहीं तत्र भोगः, श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम मोक्षस्य भोगस्य करस्थ एव। जो व्यक्ति ललितांबा का नाम का स्मरण करता है, एक बार पृथ्वी पर ललितांबा लिख करके अगर उसकी परिक्रमा कर ले, तो करोड़ों अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ का पुण्य उसे मिल जाता है। कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, कोई देव प्रतिमाओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। केवल राजराजेश्वरी और ललितांबा लिख करके पृथ्वी पर अगर एक परिक्रमा उसकी कर ले, तो 1 करोड़ राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य उस साधक को प्राप्त हो जाता है। श्री विद्या क्यों?
भोग और मोक्ष की अधिष्ठात्री अगर हैं तो श्री विद्या है, राजराजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी हैं, जिनके नाम स्मरण मात्र से, जिनके साधना के प्रभाव से साधक को भोग और मोक्ष दोनों करतल हो जाते हैं, उनके वशीभूत हो जाते हैं, उनके हाथ में आ जाते हैं। जब वो चाहते हैं भोगना तो सृष्टि के संपूर्ण भोग को भोगते हैं और अंततः सद्गति को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। पावन श्री चरणों में, पावन धाम में उनका स्थान होता है। जो परमंबिका के स्मरण करता है, उनके मंत्रों का जप करता है, उनके सेवा करता है। वैसे यह विज्ञान तो बहुत गुह्य है, परम गोपनीय है। पुनश्च इसके कुछ रहस्य को खोलना जरूरी होता है आम लोगों के बीच में, ताकि इनके प्रति लोगों की आस्था बढ़ सके, श्रद्धा बढ़ सके, लोग समझ सकें कि पराविद्या है क्या और इससे बड़ी कोई विद्या है कि नहीं इस दुनिया में। भारतीय संस्कृति में, सनातन परंपराओं में 33 करोड़ देवताओं की परिकल्पना की गई है, जिसमें 9 करोड़ शक्ति स्वरूपा है। साचंडी नव कोटि मूर्ति पर सहिता माम पात विश्वेश्वरी। 33 करोड़ देवताओं में 9 करोड़ शक्ति स्वरूपा है। जब 9 करोड़ शक्ति स्वरूपा अंबिका की पूजा होती है, सारी श्रीविद्या नहीं है, श्रीविद्या तो मात्र एक है। और वह श्रीविद्या क्यों है? क्योंकि भोग और मोक्ष दोनों के अधिष्ठात्री हैं। सृष्टि स्थिति संहार तीनों क्रम के अधिष्ठात्री हैं। उनके इच्छा मात्र से सृष्टि होता है, पालन होता है और संहार हो जाता है। दूसरा कारण, सृष्टि में जितनी भी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके कुछ अंग देवता होते हैं, उनकी पूजा होती है। ध्यान करते हैं तो केवल और केवल उस महाविद्या का, उस देवता का ध्यान होता है जिनकी हम पूजा कर रहे हैं। लेकिन राजराजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी का ध्यान जैसे ही करते हैं तो वहां केवल एक देवता का ध्यान नहीं होता है, क्योंकि जगदम्बिका पंच प्रेत पर आरूढ़ है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, ईश्वर, सदाशिव, सारी उनके ऐसे सिंहासन के स्तंभ हैं। गणपति और भैरव, कार्तिकेय उनके द्वार पर यहाँ से आगे विराजमान हैं। तो जैसे ही जगदम्बिका राजराजेश्वरी का ध्यान होता है, इस एक साथ संपूर्ण देवताओं का ध्यान हो जाता है, जो सृष्टि के निर्माण से संहार तक के अधिष्ठाता है। श्री विद्या होने का दूसरा कारण यही है, क्योंकि सृष्टि के अगर मैं क्षमा करूंगा, किसी देवताओं से मेरा कोई ऐसा नहीं है, लेकिन एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं। अगर केवल जगदम्बिका काली का मैं ध्यान करता हूं तो चूंकि शिवाधिप शिव पर आरूढ़ हैं, तो केवल भगवान शंकर और भगवती काली का स्मरण हो रहा है। लेकिन जैसे ही राजराजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी का ध्यान करते हैं तो पंच प्रेत के रूप में जितने भी देवता हैं, उन सारे लोगों का स्मरण हो जाता है। इसलिए भी, और उनके सारे लोग, सारे देवताओं के स्मरण का जो पुण्य मिलता है, वो परमेश्वरी के पूजा मात्र से, केवल एक देवता के पूजा कर लेने से, राजराजेश्वरी के पूजा करने से सृष्टि के सारे देवताओं की पूजा का फल और पुण्य मिल जाता है। दूसरा कारण यह भी है कि राजराजेश्वरी श्री विद्या है। तीसरा कारण एक और मैं बता रहा हूं आपको, सभी लोग जानते हैं। जितनी बात मैं कह रहा हूं कोई अलग से नहीं मैं बोल रहा हूं, ये सारी बात श्री विद्या के सारे साधकों को पता है। जैसे ही ललिता सहस्त्रनाम का हम पाठ शुरू करते हैं, या जैसे ही ललिता सहस्त्रनाम को हम देखते हैं, तो पहला नाम है श्री माता। श्री माता का अर्थ क्या? पहला नाम में कहते हैं श्रीमात्रे नमः। श्री का अर्थ है लक्ष्मी।
जो लक्ष्मी की माँ हैं, लक्ष्मी जिनकी पूजा करते करते धन की अधिपति बन गई हैं, जिनकी माँ है, लक्ष्मी की माँ है, वह पराशक्ता, वह परमेश्वरी ललितांबा श्री विद्या है। क्योंकि श्री की ही माँ है, इनका संबोधन ही श्री से प्रारंभ होता है। और श्री का अर्थ है ऐश्वर्य, संपदा। संपदा को बहुत छोटे रूप में नहीं आंकने की जरूरत, संपदा का व्यापक अर्थ है। केवल भौतिक धन ही नहीं, यह शरीर भी मेरी एक संपदा है। अगर मैं स्वस्थ हूं तो यह संपदा बरकरार है, अगर मैं बीमार पड़ गया तो उसमें कमियां आ गई, मेरी मृत्यु हो गई तो यह संपदा बर्बाद हो गया। श्री विद्या होने का कारण एक यह भी है। चौथा जो मैं बहुत गोपनीय और रहस्य की बात मैं बतलाने जा रहा हूं, साधक सभी जानते हैं। राजराजेश्वरी के स्वरूप का अगर चिंतन आप करेंगे, उनके स्वरूप को अगर आप देखेंगे तो एक ललिता सहस्रनाम में नाम आया है, स चामर रमावाणी शब्द दक्षिण सेविता। एक तरफ महालक्ष्मी उनके चवर को डुला रही हैं और दूसरी तरफ महासरस्वती भगवती रत्नमय सिंहासन पर बैठी हुई हैं और महालक्ष्मी और महासरस्वती उनके चवर को डुला रहे हैं, उनकी सेवा में लगी हुई है। तो जहां त्रिगुणात्मिका शक्ति की बात आती है, ललितांबा त्रिगुणात्मिका परमेश्वरी भी है। क्योंकि उनके पूजन मात्र से जैसे ही उनका ध्यान करते हैं, सच अमर रवावाणी शब्द दक्षिण सेविता, तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों शक्तियों का समन्वित दर्शन होता है। परमेश्वरी स्वयं बीच में बैठी हुई हैं, लक्ष्मी और सरस्वती चमर डुला रही हैं, उनकी सेवा में लगी हुई हैं। रत्नमय सिंहासन है, सिंहासन के नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रादीश्वर देवताएं पंच प्रेत के रूप में आरूढ़ हैं। इतनी सारी विशेषताओं को लिए हुए है हमारी राजराजेश्वरी जगदम्बिका ललिता महात्रिपुर सुंदरी। श्री विद्या, श्री शब्द अपने आप में पूर्ण है। श्री का अर्थ केवल भौतिक संपदा नहीं, श्री का अर्थ आध्यात्मिक संपदा भी है। भौतिक संपदा तो है ही, आध्यात्मिक संपदा भी है। आध्यात्मिक संपदा भी है और मनुष्य के अंदर जो एक चेतना का विकास होता है वह श्री कृपा से ही संभव है। जब तक श्री की कृपा नहीं होगी तब तक उस चेतना का विकास संभव नहीं। श्री विद्या का रहस्य अत्यंत गुह्य है। मंच पर सार्वजनिक रूप से इनके सारे रहस्यों पर बोलना गुरु परंपरा से ही प्रतिबंधित है, क्योंकि यह गुह्यतम विद्या है। यह विद्या पुस्तकों में लिखी ज्ञान से उत्पन्न नहीं होते हैं। गूगल से मंत्र मिल जाए उससे यह ज्ञान पूर्ण नहीं होता है। गुरु श्री चरणों में बैठकर गुरु परंपरा के माध्यम से इस विद्या की पूर्ण दीक्षा के साथ अगर कोई साधक आगे बढ़ता है तो वह सिद्धि लाभ को प्राप्त करता है। जगदम्बिका के श्री चरणों के अनुरागी बनता है और परमेश्वरी की महती कृपा से उसके जीवन के समस्त समस्याओं का समाधान, चाहे वह समस्या दैहिक हो, दैविक हो, भौतिक हो, किसी भी स्तर की समस्या हो, वो सारे समस्याओं के समाधान परमेश्वरी स्वयं कर देती है। षोडशी महाविद्या ललिता महात्रिपुर सुंदरी की उपासना के लिए अगर भौतिक धन की आवश्यकता हो तो उसके लिए संकल्प की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, यह जान लें, अग्नि के पास अगर आप जाएंगे तो उष्मा महसूस होगा, गर्मी महसूस होगी, और बर्फ के पास अगर पहुंचेंगे तो शीतलता भी महसूस होगा। आपकी त्वचा शीतलता महसूस करेगा, मैं बर्फ के पास हूं। उसी तरह
और अगर ये दोनों के पास जाने के बाद अगर न गर्मी महसूस हो अग्नि के पास जाने के पास और न बर्फ के पास शीतलता महसूस हो, इसका मतलब उसका अनुभव अगर आप नहीं कर पा रहे हो, न उष्मा का न शीतलता का, इसका अर्थ है कि आपके स्वास्थ्य में गिरावट आई है, आपके स्वास्थ्य में कमी है, आपके चमड़े में सेंसेशन का अभाव हो गया है, इलाज की आवश्यकता है। उसी तरह श्री विद्या के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करने के बाद किसी भी इच्छा के पूर्ति के लिए संकल्प की आवश्यकता नहीं है। वह परमेश्वरी के स्वाभाविक गुण ही हैं कि भोग और मोक्ष दोनों साधक को प्रदान करती है, भोग भी देती है और मोक्ष भी प्रदान करती है। राजराजेश्वरी ललितांबा कोई सामान्य विद्या नहीं, कोई सामान्य देवता नहीं, और इससे बड़ा कोई सृष्टि में देवता है भी नहीं। हमारे यहाँ सन्यासियों की परंपरा रही है। जो संन्यासग्रस्त साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, जो दंड धारण कर लेते हैं, आप शायद जानते भी हैं, उनकी एक विशेषता है कि वो हर मंदिरों में प्रणाम नहीं करते, उनके सर हर मंदिरों में नहीं झुकते हैं। लेकिन जैसे ही वो राजराजेश्वरी के मंदिरों में आप पहुंचते हैं तो अपने दंड को रख करके और भगवती के श्री चरणों में अपने आप को निवेदित कर देते हैं। हर देवताओं को प्रणाम न करने का एक कारण है, चूंकि श्री विद्या के साधक जो होते हैं, इसमें कई एक न्यास होते हैं, जिन्हें 16 न्यास सिद्ध हो जाता है, उनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि अगर किसी शिवलिंग के समक्ष भी अपने सर को झुका दे तो शिवलिंग में दरार आ जाता है। यही कारण है कि श्री विद्या का साधक सामान्य लोगों के सामने नहीं झुकता है, सामान्य मंदिरों में नहीं झुकता है। जो सिद्धि प्राप्त साधक हैं वो केवल और केवल राजराजेश्वरी के श्री चरणों में ही अपने आप को समर्पित करता है, अन्यथा देव प्रतिमाएं खंडित हो जाएगी। अगर किसी मानव के सामने झुक जाए, उनके प्राणांत तुरंत हो सकते हैं। काशी की एक घटना है, दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े श्री विद्या के साधक हुए भास्कर राय, नाम सब लोग जानते होंगे। काशी में जब बैठा करते थे तो उनके आवास के सामने से एक सन्यासी, जबकि अपने स्वयं सदगृहस्थ संत थे, एक सन्यासी उनके दरवाजे के सामने से प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। जब देखें कि सन्यासी मेरे दरवाजे के पास नजदीक आ गए तो अपने घर में छिप जाते थे, क्योंकि श्री विद्या का 16 न्यास सिद्ध था, उन्हें श्री विद्या सिद्ध थी। कुछ दिन तक ऐसा ही क्रम चलता रहा। किसी ने उस महात्मा को समझाया कि देखो, भास्कर राय तो एक गृहस्थ हैं और आप एक सन्यासी हैं, फिर भी आपका सम्मान नहीं करते हैं, आपको देख करके घर में छिप जाते हैं, वो आपका हमेशा अपमान करते हैं। एक बार उनसे पूछने की जरूरत है कि आप सनातन के इतने बड़े पुरोधा हैं, आप संस्कृति के इतने बड़े जैसे विद्वान हैं, आप इतनी उच्च कोटि के साधक हैं, फिर एक सन्यासी को देख करके आप अपमानित क्यों करते हैं? सन्यासी के मन में भी एक विचार आ गया कि बिल्कुल सही कह रहे हो, और उन्होंने भास्कराचार्य के दरवाजा को खटखटा दिया। भास्कराचार्य निकले, देखे कि सन्यासी सामने खड़े हैं दरवाजे पर दंड लिए हुए। उस समय भी उन्होंने नहीं झुका, क्योंकि जानते थे कि जैसे ही मैं इनके सामने ऐसे करबद्ध प्राप्त मतलब हाथ जोड़ करके झुक जाऊंगा, इनके प्राणांत हो जाएंगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो एक ब्राह्मण के मृत्यु का ऐसे दंड मतलब प्रायश्चित ही मुझे करना पड़ेगा, और हत्या का पाप भी मुझे लगेगा, और मेरी साधना तो नष्ट होगी ही। कहा कि तुम मेरे साथ, मैं जब इधर से इस रास्ते से गंगा स्नान करने जाता हूँ तो आप छिप क्यों जाते हो? कहा कि महाराज उसके पीछे कुछ कारण है, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। आप ऐसा करें कि अपने दंड को सामने रख दें और मैं दंड को अभिवादन करता हूँ, उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है आप देखो।
फिर बताना मुझे आप। तो माणसं पडत प्रश्न ಅದು ಕುಡಿದು फिर जैसे ही उन्होंने दंड को रखा, भास्कराचार्य ने साष्टांग प्रणाम किया, दंड खंड खंड हो गए। कहा कि महाराज इसीलिए मैं आपके सम्मान में ही घर में छिप जाता था कि अगर मैं आपको अभिवादन करूंगा तो आपका प्राणांत हो जाएगा, क्योंकि श्री विद्या मुझे सिद्ध है। तो श्री विद्या के साधकों के साथ जो श्री विद्या जिन्हें सिद्ध होती है, सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं है उसके लिए, सब कुछ संभव है, सब कुछ। चाहे वह भौतिक जगत की कामना हो, लौकिक जगत की कामना हो, पारलौकिक जगत की कामना हो, अर्थ धर्म काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय श्री विद्या के साधकों के करतल हो जाते हैं। यही कारण है। कई कारणों के कारण राजराजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी को श्री विद्या कहा गया। शेष महाविद्या ही हैं, जबकि संपूर्ण महाविद्याओं को कालीकुल और श्रीकुल में 2 कुलों में विभक्त किया गया है। ऐसे कुछ विद्वानों के अनुसार ताराकुल भी है, लेकिन विशेषतः कालीकुल और श्रीकुल ही जो है सो हैं। श्रीकुल की जितनी भी देवता हैं, जितनी भी देवी हैं, सारी ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली हैं। ऐसे संपूर्ण महाविद्याएं किसी भी महाविद्या के साथ भोग और मोक्ष दोनों को देती है, लेकिन उनके साथ समस्या ये है कि ध्यान केवल और केवल उस महाविद्या का होता है जिनकी आप उपासना करते हैं। लेकिन ललिता महात्रिपुर सुंदरी के साधना में आप जब ध्यान करते हैं तो यहाँ सृष्टि के सारे देवताओं की ध्यान स्वयं में हो जाते हैं, क्योंकि उनका विग्रह उसी रूप में उपस्थित है, ध्यान उसी रूप में होता है। पंच प्रेतों पर आरूढ़ हैं, सदाशिव लेटे हुए हैं, नाभि से कमल निकली है, उस पर आसीन हैं जगदम्बिका राजराजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी। इन सारे कारणों से जगदम्बिका को श्री विद्या कहा गया। श्री विद्या श्री अपने आप में संपूर्ण संपदा है, संपूर्ण ऐश्वर्य है। ऐसे तो और भी कुछ गुप्त कारण हैं, परंतु इस सभा में नहीं कहा जा सकता है, सार्वजनिक रूप से उसे नहीं कहा जा सकता। गुरु शिष्य परंपरा में ही भगवान है ग्रीव ने भी महर्षि अगस्त को जो उपदेश दिया वो एकांत में दिया, न कि सार्वजनिक रूप से दिया। तो श्री विद्या की साधना के लिए एकांत होना अनिवार्य है, और गुरु शिष्य परंपरा में श्री विद्या के संबंध में बहुत कुछ कहा जा सकता है, उनको रहस्यों को खोला जा सकता है। फिर भी मैं इतना अवश्य कहूँगा कि जिन्हें भी संपूर्ण भौतिक संपदा की आवश्यकता है, सृष्टि में तीनों ऐसनाएं जिसे भी चाहिए, 3 ऐसना क्या होता है? तो सबसे पहले होता है वित्त ऐसना। वित्त कहते हैं धन को। किसी भी मनुष्य में सबसे पहले आप ऐसना होती है, इच्छा होती है, चाह होती है धन की। मैं बहुत बड़ा धनवान बन जाऊं, मैं बहुत बड़े पैसे वाले हो जाऊं, दुनिया मुझे पैसे वालों के रूप में जाने, धनवान के रूप में जाने। तो वित्त ऐसना। चाह जो है, ऐसना का अर्थ चाह है, तो सबसे पहले पैसे की चाह होती है। पैसे की चाह के बाद होता है पुत्र ऐसना। एक प्रश्न आता है कि भाई ये पैसे तो मेरे पास हो गए, सारी सुख सुविधाएं, गाड़ी घोड़ा मोटर सब कुछ मेरे पास है, लेकिन ये पैसे का होगा क्या? मृत्यु तो परम सत्य है। मेरी जब मृत्यु हो जाएगी तो ये पैसा क्या होगा? इसका भोग कौन करेगा? किसके लिए मैं पैसा इतना कमा रहा हूं? चाहे सही करके, गलत करके, झूठ सच जो भी करके मैं पैसा कमा रहा हूं, मेहनत करके, सत्य सही ढंग से ही पैसा कमा रहा हूं, सत्य के मार्ग पर भी चल के पैसा कमा रहा हूं, धन कमा रहा हूं, धन संचित कर रहा हूं, तो मेहनत तो करना ही पड़ रहा है। तो फिर ये धन क्या होगा? इसका भोग करने वाला कौन है? तो फिर बात आती है पुत्र ऐसना। उसके मनुष्य के अंदर जैसे संतान उत्पत्ति की इच्छा जागृत होती है कि मेरा भी कोई संतान हो, बेटा हो, बेटी हो, कुछ भी हो, संतान हो, ताकि मेरे द्वारा अर्जित किए गए धन को जो है से उपभोग कर सके, वो सुखपूर्वक रख सके।
जब पुत्र ऐसा भी प्राप्त हो जाता है तब एक अंदर से आवाज आती है, एक अंदर से एक और ऐसा जागृत होती है, एक और चाह जागृत होता है कि दुनिया मुझे जाने, इतने बड़े धन संपत्ति सारा कुछ है, दुनिया मुझे जानती ही नहीं है। हम एक कोने में सिमट कर रह गए हैं कि हाँ इस बाजार के इतने बड़े लोग हैं, इस स्थान के में इतने बड़े पूंजीपति लोग रहते हैं, इतने बड़े धनवान लोग रहते हैं, लेकिन दुनिया नहीं जानती मुझे। तो उसके लिए होता है लोकेशना, लोक में मुझे जाने, दुनिया में मुझे जाने। तो लोक ऐसना के लिए लोग समाज के सेवा में जुट जाते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने लगते हैं, जिनके माध्यम से दुनिया उन्हें जानना शुरू करती है। तो जिन मनुष्यों को इस सारी ऐसनाओं की आवश्यकता है, वित्त ऐसना, पुत्र ऐसना और लोकेशना, हमारी संपूर्ण चाह की पूर्ति केवल और केवल एक श्री चरणों में हो सकती है, वह है जगदम्बिका के श्री चरणों में, राज राज ललिता महात्रिपुर सुंदरी के श्री चरणों में। हम लोग आए, संकल्प लें कि अगर मेरे अंदर चाह है, चाह तो सृष्टि में कोई भी ऐसे जीव नहीं है जिनका अंदर चाह नहीं है। चाह से ब्रह्मा विष्णु महेश भी मुक्त नहीं हो सके। जो किसी ने चाहा कि मैं जगत का संहार कर दूं तो संहार कर दिया, यह तो चाह का ही प्रतिफल, इच्छा का ही प्रतिफल है। विष्णु ने चाहा कि मैं जगत का पालन करूं तो जगत का पालन करना शुरू कर दिए। ब्रह्मा ने चाहा कि मैं सृष्टि का निर्माण करूं तो उन्होंने सृष्टि क्रम में निर्माण कर दिया। तो मेरे अंदर किसी भी प्रकार की अगर चाह हो, इच्छा हो, और अगर आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है किसी कर्म के फल स्वरूप, तो मेरा दावा है आप भी श्री विद्या के श्री चरणों में आएं और उनकी उपासना क्रमबद्ध तरीके से एक सिस्टमेटिक ढंग से शुरू करें। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पराम्बा आपकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेगी, आपकी इच्छा की अवश्य पूर्ति होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और श्री विद्या प्रिय 3 दिनों के व्याख्यान के क्रम में मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने जा रहा हूं। बहुत बड़ा उपहार है। यह उपहार कोई बाजार में मिलने वाली उपहार नहीं होगी, लेकिन हाँ, ये उपहार में ऐसा उपहार है कि आपके जीवन को बदल देगा, आपके जीवन में एक नई क्रांति ला देगा, आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवाह शुरू कर देगा। आवश्यकता है 3 दिनों के इस प्रोग्राम को आप अटेंड करेंगे, श्री विद्या को समझेंगे कि संपूर्ण महाविद्याओं को महाविद्या कहा गया, लेकिन राज राज ललिता महात्रिपुर सुंदरी को श्री विद्या क्यों कहा गया। श्री यंत्र को समझेंगे, उनकी पूजन विधि को समझेंगे, और राज राजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी कौन है, वैखरी वाणी से जो कुछ भी संभव होगा उसे समझने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद उस उपहार को अगर लेकर के आप अपने घर में जाएंगे, उस उपहार के माध्यम से आप प्रतिदिन 2 मिनट भी आंख बंद करके बैठेंगे, उस उपहार का चिंतन करेंगे कि मुझे जो गिफ्ट मिला है, उपहार मिला है, वो कितना सुंदर मिला है। तो मैं दावा करता हूं कि आपके जीवन में एक नई क्रांति आ जाएगी। आपके जीवन के किसी भी प्रकार की समस्या हो, 41 दिनों में उसका समाधान निश्चित मिल जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं। यह परमाम्बिका की अद्भुत प्रेरणा से, उनकी कृपा से सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। जिसके दरबार में ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र ईश्वर आदि देवता भी अकिंचन भाव से खड़ा होते हैं, लक्ष्मी और सरस्वती भी चमर डुलाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इससे भी बड़ी कोई सत्ता हो सकती है? नहीं, इससे बड़ी कोई सत्ता हो ही नहीं सकती है। और यह सत्ता भी इतनी सौम्य है, इतनी सौम्य है कि अखिल ब्रह्मांड नायिका है, त्रिपुर सुंदरी है, त्रैलोक्य में इससे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता।
इसलिए तो त्रिपुर सुंदरी इसको कहा गया, नाम पड़ा त्रिपुर सुंदरी। ऐसे कुछ लोग साधक यह भी जोड़ सकते हैं कि त्रिपुरा में इनका पीठ है, राजराज ललिता महात्रिपुर सुंदरी का, इसलिए त्रिपुर सुंदरी नाम पड़ा। तो एक स्थान विशेष से लिख हो सकता है, लेकिन त्रैलोक्य में, त्रिपुर में, तीनों पुरों में इससे सुंदर कोई है ही नहीं। यही कारण है कि यह त्रिपुर सुंदरी है, जो भोग और मोक्ष दोनों की अधिष्ठात्री है, जो ज्ञान और विज्ञान की अधिष्ठात्री है, जिनका स्वरूप इतना सौम्य है। पंच प्रेत पर आरूढ़ होने के बाद भी, प्रेत भी कोई मानवीय प्रेत नहीं, दैवीय प्रेत है। पंच प्रेत पर आरूढ़ होकर के, जिनके एक पैर श्री यंत्र के मध्य बिंदु पर स्थापित है, जिनके दाहिने और बाएं लक्ष्मी और सरस्वती चमर डुला रही हैं। कितना मनोरम दृश्य है, कितना मनोरम छवि है जगदम्बिका का। और अगर ऐसे स्वरूप का अगर आप चिंतन करते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि पर जगदम्बिका के श्री चरणों में जैसे ही आपके सर झुकेंगे तो उनके पंच अंगुलियों से जो तेज निकल रहा है, पंच अंगुलियों से ये पंच भौतिक तत्व की अमृत वर्षा हो रही है, वह हमारे ऊपर उसके छींटे पड़ रहे हैं और जीवन के तमाम समस्याओं का समाधान स्वयं में मिलता चला जा रहा है। श्री विद्या कोई सामान्य विद्या नहीं, इससे उत्तम न कोई विद्या हुई है, इससे बड़ी न कोई शक्ति हुई है और न शक्ति होगा। क्योंकि सारे देवता अंततः इसी परमेश्वरी की उपासना करते हैं। सृष्टि में जब कोई भी संकट आता है तो तामुपैहिम महाराजम शरणम परमेश्वरी, जब जब भी जीव पर संकट आया है, जब जब जीव की बात तो छोड़ दें, जब जब देवताओं पर संकट आया है, मनुष्य पर संकट जब भी आया है तो ब्रह्म का अवतार हुआ है, लेकिन जब जब भी देवलोक पर, इंद्रलोक पर संकट आया है, जहां सारे देवता अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं उन दैत्यों को संहार करने में, उन दैत्यों से युद्ध करने में, उन्हें भी जब पीठ दिखाकर भागना पड़ा है, वैसी परिस्थिति में परमेश्वरी का स्मरण लोगों ने किया है, जगदम्बिका का स्मरण किया है। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रादि सारे देवता मिलकर के राजराजेश्वरी की स्तुति करते हैं, और जब भगवती प्रकट होती हैं, उनकी स्तुति से प्रसन्न होती हैं, उस स्थिति में जगदम्बिका उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उन्हें अभय वरदान देते हैं, निर्भय होने का वरदान देते हैं और उन सारे दैत्यों का संहार कर देते हैं। तो जिसके सामने सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता भी अकिंचन भाव से खड़ा है, यही कारण है कि वह श्री विद्या है। यही कारण है, कई कारणों में एक यह भी कारण है कि वह श्री विद्या है। महाविद्या तो है ही, साथ साथ श्री विद्या है कि जहां समस्त देवता भी अकिंचन भाव से खड़े हैं। परमंबिका मेरी रक्षा करो, त्राहि माम जननी, त्राहि माम, मेरी रक्षा करो। मैं समझता हूं कि इन सारे तर्कों और शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर आप समझ गए होंगे, समझ रहे होंगे कि सृष्टि के सारे देवताओं को महाविद्या कहा गया, लेकिन महाविद्या तक ही कहा गया सारी शक्ति के स्वरूपों को, लेकिन राजराजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी को श्री विद्या क्यों कहा गया? इसके जो कुछ मैंने प्रमाण प्रस्तुत किया शास्त्र के अनुसार, आप भी इसे समझते होंगे, इससे संतुष्ट होंगे, और जो गोपनीय प्रमाण है, गोपनीय तथ्य है, वह तो गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ही दिया जा सकता है। वो लेक्चर का विषय नहीं है, वह अनुभूति का विषय है। और इन वैखरी वाणी से
जगदम्बिका के बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि जिस महाविद्या के संबंध में, जिस त्रिविद्या के संबंध में ब्रह्मा विष्णु महेश भी कुछ कहने में अपने आप का समर्थ महसूस करते हैं, सरस्वती की वाणी भी मूक हो जाती है, वहां पे वेद भी नेति नेति कह करके आगे बढ़ जाता है। उस त्रिविद्या के संबंध में बहुत कुछ कहा जाए, मेरे ऐसे अकिंचन लोगों की क्या विशाल है, क्या सामर्थ्य है। पुनश्च फिर भी जो कुछ भी ज्ञान परमेश्वर ने मुझे दिया था, वो सारा कुछ जो अनुभव रहा है वो आपके पास मैंने निवेदित किया। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप संतुष्ट होंगे। और कल का कार्यक्रम, कल के व्याख्यान माला में मैं पूरी तरह से श्री यंत्र को समझाने का प्रयास करूंगा, इसके आध्यात्मिक रहस्य को, इसके वैज्ञानिक रहस्य को, कि आखिर श्री यंत्र को यंत्र राज क्यों कहा गया। ललिता महात्रिपुर सुंदरी को श्रीविद्या कहा गया, तो श्री यंत्र को यंत्र राज क्यों कहा गया, और इस यंत्र राज की पूजा की पद्धति क्या होगी, इनके पूजा से कौन कौन से समस्याओं का समाधान मुझे प्राप्त हो सकता है, इनकी पूजा की विधि क्या होगी, वह वैदिक विधि क्या होगी, तांत्रिक विधि क्या होगी, इनमें कई एक समयाचार, चीनाचार, कौलाचार, कई एक परंपराओं का समावेश है। तो सारे समस्याओं का समावेश तो हम 1 घंटे में नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात की जो गोपनीय परंपरा है उसको आम मंच से नहीं समझाया जा सकता है। पुनः फिर भी इनके वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य को मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि इसकी वैज्ञानिकता क्या है, श्री यंत्र को यंत्र राज क्यों कहा गया है। यह यंत्र सामान्य धारणा समाज में बनी हुई है। आज भी दक्षिण भारत को छोड़ करके और अन्यत्र जगहों पे श्री यंत्र को लक्ष्मी का यंत्र समझते हैं। समस्या तो यह है, जो साधक वर्ग ने, आज तो सोशल मीडिया ने बहुत कुछ जो है ओपन कर दिया है, सभी लोग ज्ञानी हो चुके हैं, लेकिन इसके जब तक सोशल मीडिया के पूर्व सामान्य लोग इसे लक्ष्मी का यंत्र समझते थे। यह राजराज ललिता महात्रिपुर सुंदरी का यंत्र है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, लोग जानते ही नहीं थे। लोग यही सोचते थे कि लक्ष्मी का यंत्र है, और कागज के फ्रेम में मढ़ा करके अपने दुकान में, घर में टांग दिया है लोगों ने। तो भाई प्रश्न यह उठता है कि बंदूक के चित्र को आप जेब में लेकर के घूमोगे और कोई आए चोरी करने आए, या कोई जैसे गुंडा बदमाश आपका पीछा करने लगे, तो कहे भाई फायर करो जल्दी से, बंदूक तो जेब में लेके घूम रहे हो, तो क्या आपको फायदा मिलेगा? आप उस तस्वीर से, कागज में बने हुए बंदूक की तस्वीर से गोलियां आप चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। श्रीयंत्र का पूरा लाभ लेने के लिए श्रीयंत्र के सही डायग्राम होनी चाहिए, श्रीयंत्र की सही पूजन पद्धति होनी चाहिए, श्रीयंत्र को ढंग से समझने की आवश्यकता होगी, तभी हम श्रीयंत्र के सुरक्षक लाभ ले सकते हैं। सामान्य धारणा यही है कि पीतल, पत्थर, कागज, किसी भी चीज़ की श्रीयंत्र जो देखने में एक खूबसूरत आकृति है श्रीयंत्र की, अपने घर में स्थापित कर लिया, रोली चंदन चढ़ाते चले गए, और लोगों ने सोचा कि अब क्या, अब तो मैं अरबपति बन गया, मैं धनवान हूँ, क्योंकि मेरे घर में तो श्रीयंत्र की स्थापना हो गई। पंडित जी ने भी यही काम किया, श्रीयंत्र को स्थापित करवा दिए। लेकिन ऐसी कोई बातें नहीं है। श्रीयंत्र को समझना होगा कि श्रीयंत्र है क्या, इनकी उपासना की पद्धति क्या है, यह यंत्र है तो किसका यंत्र है? यह यंत्र श्री राजराजेश्वरी ललितांबा का यंत्र है, न कि लक्ष्मी का यंत्र है। महालक्ष्मी इस यंत्र की पूजा करते करते धन के अधिपति बन गई हैं। तो कल के सत्र में हम लोग श्रीयंत्र को समझेंगे, श्रीयंत्र के पूजन पद्धति, श्रीयंत्र के घर में रखने से उसका लाभ क्या होगा वो समझेंगे। लेकिन हाँ, पुनः एक बार मैं कहने जा रहा हूँ कि 3 दिनों तक जो लोग लगातार इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, उन्हें एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने जा रहा है, बहुत बड़ा उपहार मैं देने जा रहा हूँ। इतना बड़ा उपहार होगा कि आपके जीवन को बदल सकता है, आपके
पूरे संस्कार को बदल सकते हैं, आपके किए गए अच्छे बुरे कर्म को परिवर्तित कर सकते हैं, और आपके जीवन में जो कुछ भी कमी रह गई हो, जिस अभाव में जिस कमी के कारण आप बार बार मानसिक तनाव में, व्यथा में गुजरते हैं, उन सारे तनाव को भगवती दूर कर देंगी उस उपहार को प्राप्त करने के बाद। तो कल के सत्र में हम लोग श्रीयंत्र की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व को देखेंगे। इसी के साथ परमंबिका के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, और आप सभी राजराजेश्वरी के श्री चरणों में, राजराजेश्वरी के सभी समस्त भक्तों के श्री चरणों में भी मेरा नमन। जगदम्बिका से मेरी प्रार्थना है, मैं अपने आप को उनके श्री चरणों में निवेदित करता हूँ, और बार बार यही प्रार्थना करता हूँ कि अपने श्री चरणों में सेवा का मौका ऐसे ही हमेशा देते रहें, और मैं आपकी सेवा अनंत काल तक, जब तक जीवित रहूं तब तक कर सकूं। दैव भारती परिवार आज आपको आध्यात्म के नए सूत्र में बांधने जा रही है। दैव भारती परिवार की ओर से भी मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। राजराजेश्वरी इस कार्यक्रम में जो लोग जुड़े हैं उनका भी, और जो लोग नहीं भी जुड़े हैं उनका भी, सृष्टि के समस्त जीवों का कल्याण करें, उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखाय भवेत्। माँ आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए राजराज श्रीलता महात्रिपुर सुंदरी की जय। धन्यवाद आचार्य जी। हम क्लोज करेंगे, है ना? जी जी। पूरा किया है। कल मिलेंगे। सभी को धन्यवाद जो भी आज मिले हैं इधर। कल श्री यंत्र के बारे में आचार्य जी हमें बताएंगे। So thank you so much everyone who have joined this program. So tomorrow we will join the same program at 7:30 for to know more about Shri Yantra. Thank you so much. So if you have questions, you can post it in the group and I'll share it with it, because Acharya ji announced that I am putting a closure to my Vani right now. So thank you so much. So tomorrow we can take some questions if possible, if Mishra ji allows us. आचार्य जी कल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्या? हाँ, पूछा जा सकता है, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। कल मिलेंगे। नमस्ते। I'll close the meeting. आचार्य जी क्लोज करो। जी जी बिल्कुल जी, किया जाए। ठीक है, थैंक यू। कर दिया।